أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are with lecture number 8 from the chapter Lines and Angles. Our class is 9th, subject is mathematics, and today's topic is axioms. So what do we mean by an axiom? What do we mean by an axiom? Let us see. What is an axiom? See, axiom is a statement. Axiom is a statement that is accepted, as true. What do you mean by axiom? Axiom is a statement that is accepted as true. Axiom एक स्टेटमेंट है, एक एक्सप्रेशन है जिसको हमें मानना है कि ये सही है. इसके लिए आपको कोई प्रूफ, कोई जस्टिफिकेशन, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है. तो मैं यहां पे लिखता हूं, इट does not need any further proof or reason. Axiom हम किसे कहते हैं? Axiom is a statement that is accepted as true. Axiom वो स्टेटमेंट है, वो एक्सप्रेशन है जिसको हमें मानना पड़ेगा कि ये सही है. और इट डज नॉट नीड एनी प्रूफ और रीजन. इसको हमें प्रूफ या रीजन या जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है. किसको? एक्शियम को. तो इसको मजीद समझने के लिए, एक्शियम को मजीद समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, हम यहाँ पे कुछ एक्शियम्स लेंगे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे. हमें खुद ब खुद एक्शियम का माने पता चल जाएगा कि एक्शियम हम किसे कहते हैं. लेट्स टेक few examples, few axioms. Suppose we have an axiom number 1. Okay. Let us see. This is a point. This is a point. And now I am going to draw a line through this point, isn't it? I have drawn a line through this point, one line. Now I am going to draw another line through this point. Now, how many lines have I passed through this point? First was this line through this point, and now another line has been passed through this point. Similarly, I am putting the third line. Through this point. Same point, one point, single point. 3 lines have been drawn through this point. Now this is fourth line.
Now this is the fourth line passing through the same point. Now let me say that through this point we can draw as many lines as we wish. Through this point, through this single point, we can draw as many lines as possible. इस पॉइंट के बीच में हम जितनी लाइनें चाहें उतनी हम पास कर सकते हैं. That means we can draw infinite number of lines through this point. We can draw unlimited number of lines through this point. It doesn't need any proof. It doesn't need any reason or justification. It is to be accepted. This statement is to be accepted that through one point we can draw infinite number of lines. Let us write down here. Through one point we can draw we can draw infinite यानी ला तादाद infinite यानी unlimited number of lines. तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ये है कि थ्रू वन पॉइंट वी कैन ड्रॉ इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स. एक ही पॉइंट के बीच में हम बेशुमार लाइनें पास कर सकते हैं. सो दिस statement is an axiom because it doesn't need any proof, justification, reason. So what's an axiom? Axiom is a statement that is accepted as true. सबको मानना पड़ेगा ये सही है. It does not need any proof or reason, और इसको हमें proof, reason या justification देने की जरूरत नहीं है. तो पहली axiom ये है कि through one point we can draw infinite number of lines. तो अब हम दूसरी axiom देखेंगे. यानी axiom को मजीद समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल से. ठीक, चलिए जी, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाला था तो बहुत सारी लाइनें पास हुई थी. अब मैं क्या करने वाला हूँ. अब मैं एक पॉइंट नहीं डालूंगा बल्कि मैं 2 पॉइंट डालूंगा. चलिए जी, मैंने 2 पॉइंट डाले. अब मैं ऐसी लाइन खींचूंगा जो इन दोनों लाइनों के बीच में जाए. तो चलिए जी, यहाँ पे मैं इस पॉइंट के बीच में जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और इस पॉइंट के बीच में भी जाता हूँ. ठीक, तो ये जो 2 पॉइंट्स थे, इन 2 पॉइंट्स के बीच में मैंने एक लाइन खींची. मैंने इन पॉइंट्स को जोड़ा आपस में. मैंने एक लाइन पास की इन दोनों पॉइंट्स के बीच में. चलिए, आप मुझे बताइए, क्या और कोई लाइन है? Is there any other line which can be passed through these 2 points? One line has been drawn through these points. Is there any other line which can be drawn through these points? No. Through these 2 points, through these 2 distinct points, ये 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, इनके बीच में हम सिर्फ एक लाइन पास कर सकते हैं. अगर एक ही पॉइंट होता तो बहुत सारी लाइनें पास होती. अब अगर 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, उनके बीच में हम सिर्फ एक लाइन पास कर सकते हैं. ठीक, ये भी एक एक्शन है. क्या एक्शन है? थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, through two distinct points, we
can draw only one line. चलिए जी, मैंने क्या बताया? Through two distinct points we can draw only one line. यानी दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के बीच में हम सिर्फ एक लाइन पास कर सकते हैं. So this statement will be called as axiom because it does not need any proof, reason or justification. It is to be accepted as true. Through one point we can draw an infinite number of lines that is accepted as true. No, does not need any justification, proof or reason. Hence it is an axiom. This statement is an axiom. Similarly, there is another statement that through two distinct points we can draw only one line. This statement is an axiom because it doesn't need any proof, justification or reason. So there are two axioms here, and the third one is here. Axiom number third. Axiom number third is there. और axiom third को हम, अगर आप को याद होगा 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, और आज हमें फिर से इसके बारे में पढ़ना है. ये एक लाइन है, ठीक. चलिए जी, लाइन एक है, तो यहाँ पे एक रे खड़ी है. इस लाइन पे एक पॉइंट पे एक रे खड़ी है, तो उसकी वजह से, रे की वजह से यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, ठीक है ना. मान लीजिए ये 100 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, ठीक. 100 डिग्री 80 डिग्री. अब बताइए इनका सम कितना है? 180 डिग्री. तो एक एक्सियम है जिसको हम कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम. लीनियर पेयर एक्सियम, LPA, लीनियर पेयर एक्सियम. चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. लीनियर पेयर एक्सियम क्या है? कहते हैं, स्टेटमेंट कहता है, इफ टू और मोर angles, if two or more angles are formed on the same line, then their sum is 180 डिग्री. कहते हैं, एक स्टेटमेंट है, if two or more angles are formed on the same line. चलिए जी, लाइन हम ये मानते हैं, और यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं? 2 एंगल बन रहे हैं. कहते हैं कि अगर एक ही लाइन पे 2 एंगल या 2 से ज़्यादा एंगल बन रहे हैं तो उनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री. बिकॉज द मेजर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का जो मेजर होता है वो होता है 180. उस पे जो एंगल बनेंगे, चाहे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उन 8 एंगलों का सम जो होगा, उन 8 एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा. हमारे पास यहाँ पे इस लाइन पे 2 ही एंगल बन रहे हैं, तो इन 2 एंगल्स का सम होगा 180. दिस इज कॉल्ड एज लीनियर पेयर एक्सियम. डजंट नीड एनी प्रूफ और रीजन और जस्टिफिकेशन. So linear pair axiom is, if 2 or more angles are formed on the same line, then their sum is 180 degrees. This is called as linear pair axiom. तो इस लीनियर पेयर एक्सियम की मदद से देखिए, हम एक छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि चलिए देखते हैं, ये हमारा 110 डिग्री एंगल है और ये एंगल हमें पता नहीं है. 110 डिग्री एंगल बन रहा है और ये एंगल हमें पता नहीं है. मान लीजिए ये एंगल x है, ठीक है. तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. ये x एंगल x निकालते हैं.
ठीक। तो हमें पता है x प्लस 110 डिग्री यानी ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना है 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एक्शन, लीनियर पेयर एक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। x वापस लिखते हैं इज इक्वल टू वापस लिखते हैं 180 डिग्री लिखते हैं, ये 110 इसके पास जाएगा। तो चलिए x का वैल्यू देख लीजिए, ये 70 डिग्री निकलता है। तो हमारा जो एंगल x है यहाँ पे 70 डिग्री होगा। अब अगर हम ऐड इनको करेंगे 110 और 70 को तो 180 निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास लीनियर पेयर एक्शन है कि अगर दो या दो से ज़्यादा एंगल एक ही लाइन पे बन रहे हैं, सेम लाइन पे बन रहे हैं, तो उनका सम 180 डिग्री होगा, डेफिनेटली 180 डिग्री होगा। तो हमने इसको अप्लाई भी किया इस लीनियर पेयर एक्शन को और हमने एंगल x ढूंढ लिया। तो आगे और भी एक्शंस हैं, फिलहाल हमने आज 3 एक्शंस किए। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड करता हूँ। एक्शन कहते हैं, एक्शन इज अ स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू, इट डज नॉट नीड एनी proof or reason. Action is a statement that is accepted as true. It does not need any proof or reason or justification. Action number 1, through one point we can draw infinite number of lines. एक ही पॉइंट के बीच में हम बहुत सारी लाइनें पास कर सकते हैं, अनलिमिटेड लाइन्स पास कर सकते हैं। ये एक्शन फर्स्ट था, ये स्टेटमेंट फर्स्ट था। अब उसके बाद एक्शन सेकंड, थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन। अगर हमारे पास 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं तो हम उनके बीच में सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हैं। थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन। दिस वाज एक्शन नंबर सेकंड। एंड एक्शन नंबर थर्ड इज most famous. This is the most famous action in mathematics and geometry, which is called as linear pair action. It says, the statement is, if 2 or more angles are formed on the same line, then their sum is 180 degree. अगर 2 या 2 से ज़्यादा एंगल एक ही लाइन पे बन रहे हैं तो उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसको हमने अप्लाई भी किया। यहाँ पे एक लाइन थी, उस पर 2 एंगल बन रहे थे। एक एंगल का मेजर 110 डिग्री और दूसरा एंगल हमें निकालना था, उसको हमने नाम रखा x। तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में लिखा x प्लस 110 इज इक्वल टू 180। ये तो 2 एंगल है, इनका सम 180 डिग्री है। ये तो हमें लीनियर पेयर एक्शन कह रहा है, LPA। तो x हमने वापस लिखा इज इक्वल टू भी वापस लिखा 180 में से 110 निकालेंगे तो वो 70 डिग्री निकलता है। तो लीनियर पेयर एक्शन के ज़रिए हमारा दूसरा एंगल भी निकल सकता है। तो ये तो थी हमारी इस चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की 3 इम्पोर्टेंट एक्शंस। अभी और भी बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। फ़िलहाल इतना काफ़ी है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।